Hello everyone. So today we will read about the preamble and there are 51 question totals. After reading that we will be able to solve all type of question related to preamble. So here we are beginning with the question number 1. So पहला question है कि we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure all its citizens justice social economic and political liberty of thought expression faith belief and worship equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly this acts do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. X stand for 26th day of January 1949. The Indian Constitution starts with the preamble which outlines the main objective of the Indian Constitution. The preamble describes the nature, objective, and the ideal of the Indian political system. It also contains date on which the Constitution was adopted, 26 November 1949. सो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म एक्स स्टैंड फॉर द अडॉप्शन डेट क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स तो क्या था ये था अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बी एक्सप्लेनेशन है इसका Constitution of India came into force on 26 January 1950. The exact constitutional status on 26 January 1950 was Sovereign Democratic Republic. The word socialist, secular and integrity were added by 42nd Amendment Act 1976. मीन्स 26 जनवरी 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था वो था सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का था और जो सोशलिस्ट सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड्स यूज़ किए गए थे वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में किए गए थे क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन द 26 जनवरी 1950 सेम वही क्वेश्चन है रिपीट हो गया है इसका है आंसर बी सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्वेश्चन नंबर 4 है द वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट वर एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय तो ये है 42nd अमेंडमेंट 1976 इसका आंसर है सी क्वेश्चन नंबर 5 है बाय विच नेम एम इज़ आवर कंट्री मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन किस नाम से मेंशनड है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कंट्री का तो वहाँ पे लिखा है कि इंडिया दैट इज़ भारत तो ए होगा इसका तो एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं देयर वाज नो anonymity in the Constituent Assembly about the name of the country. Some members suggested the traditional name Bharat, while others advocated the modern name India. Hence, the Constitution of India contains both. According to the Article 1, India that is Bharat shall be the union of state. Okay? तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में ये दिया गया है कि कुछ लोग इस मत में थे कि नाम भारत दिया जाए पुराना नाम जो है ट्रेडिशनल वो भारत दिया जाए कुछ लोगों ने एडवोकेट किया था कि आधुनिक नाम दिया जाए जो कि इंडिया था तो आर्टिकल 1 में ये दिया गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट क्वेश्चन नंबर 6 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट ठीक है तो इसका हम डायरेक्टली आंसर पढ़ते हैं इसका आंसर है डी सॉवरेन सोशलिस्ट secular democratic republic explanation I will read the preamble to the Indian Constitution was amended by 42nd amendment in 1976 we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic the word people is not mentioned in peoples is not mentioned in the preamble of Indian Constitution this particular word has been mentioned in the constitution of China मतलब ये है कि यहाँ पे अगर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में देखोगे तो यहाँ पे पीपल्स लिखा है ठीक है तो ये
जो पीपल्स है ये चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में यूज हुआ है, ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में वी द पीपल यूज हुआ है, पीपल। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें सॉवरेन मेंशन्ड है, सेकुलर मेंशन्ड है, डेमोक्रेटिक मेंशन्ड है, बट फेडरल मेंशन्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच फॉर्म इज इंडिया डिक्लेयर्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है सी, अ सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सॉवरेन सेकुलर। इसमें क्या करना है, सीक्वेंस में लगाना है। तो इसका सीक्वेंस ए है, क्या है, पहले सी वाला है सॉवरेन, फिर है डी है सेकुलर, फिर बी है डेमोक्रेटिक, फिर उसके बाद में क्या है, फिर ए है सोशलिस्ट। इसका ऑप्शन जो है ए है। सबसे पहले आएगा सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, फिर डेमोक्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैव बीन एडेड टू द प्रीएम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट। तो कौन से वर्ड यूज़ किए गए थे, ऐड किए गए थे। तो इसमें ऐड किया गया था फर्स्ट और थर्ड वाला, सोशलिस्ट और सेकुलर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट। तो इसका आंसर है बी, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। The preamble of the Constitution contain word secular, which was added in the preamble by 42nd Amendment Act. Thus it declare India as a secular state. Question number 12. Which one of the following word was not included in the preamble of India and Constitution in 1975? कौन सा word नहीं यूज किया गया था। तो इसमें क्या गया था, फ्रेटर्निटी यूज किया गया था, इक्वलिटी और सॉवरेन यूज था, बट इंटीग्रिटी नहीं यूज किया गया था। द वर्ड इंटीग्रिटी वॉज नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ इट्स कमेंसमेंट। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे इंटीग्रिटी वर्ड नहीं था, और ये 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुआ था। 13th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। तो 13th का हम पढ़ते हैं कि द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू फाइनली बिकम प्रीएम्बल, ये सही है। इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल, प्रीएम्बल सही है, ये भी जस्टिसिएबल नहीं है। इट कैन नॉट बी अमेंडेड, ये गलत है क्योंकि एक बार अमेंड किया जा चुका है। प्रीएम्बल कैन नॉट ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला सही है। तो इसका जो ऑप्शन है वह बी, 1, 2 and 4, 1, 2 and we will read the explanation. The objective resolution moved by Jawaharlal Nehru on 13 December 1946 was unanimously adopted by the Constituent Assembly on 22 January 1947। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मूव किया गया था 22 जनवरी 13 दिसंबर 1946 में, उसको अडॉप्ट कर लिया गया था 22 जनवरी 1947 में। और लेटर बाद में यही जो रेजोल्यूशन था वो फाउंडेशन बना प्रीएम्बल का। द सुप्रीम कोर्ट सेड इन केशवानंद भारती केस, 1973 में केशवानंद भारती केस आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द एम्बिगुअस एरिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जहाँ पे एम्बिगुअस एरियाज होंगे वहाँ पे यूज किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में का एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए जहाँ पे थोड़ा सा मतभेद होगा वहाँ पे प्रीएम्बल का यूज किया जा सकता है। अमेंडमेंट ऑफ द प्रीएम्बल इज पॉसिबल बाय 42nd and by 42nd अमेंडमेंट वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी वर एडेड टू इट। इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल, ये जस्टिसिएबल नहीं है। Its provision can't be enforced in the court of law. It cannot override the provision of the Constitution. Question number 14. The preamble of Constitution was amended by, किससे अमेंड हुआ था, 42nd अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 15. The term socialist was added, socialist भी 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुआ था। The term socialist was brought into preamble in same 16 नंबर क्वेश्चन भी वही है 42nd अमेंडमेंट में।
17th है द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 विच वर्ड वर एडेड वर नॉट प्रेजेंट, कौन से वर्ड प्रेजेंट नहीं थे? तो इसका है आंसर ए 1, 2 एंड 3। 1 क्या है? सोशलिस्ट, 2 है सेकुलर एंड 3 क्या है? इंटीग्रिटी और सेकुलर। ठीक है, ये 3 वर्ड नहीं यूज किए थे, पहले नहीं थे और इसको बाद में ऐड किया गया था। 18th है द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर इंसर्टेड इन द प्रियम्बल, ये सेम वही क्वेश्चन है, 42nd अमेंडमेंट। 19th क्वेश्चन सेकुलर बी है, सेम क्वेश्चन, इसको देख लो, वही बार बार क्वेश्चन आए हैं। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सारे बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं, और जब जितने बार एग्जाम्स होंगे मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आते ही रहेंगे। द गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू सिक्योर एश्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, क्या गोल है? जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं, बी का डी है, मतलब ये सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। द प्रियम्बल एम्बॉडीज द बेसिक फिलॉसफी एंड फंडामेंटल वैल्यू ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। द प्रियम्बल इज एम टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन सोशल जस्टिस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, जस्टिस कितने प्रकार के हैं दिए गए हैं? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। लिबर्टी कितने प्रकार के दिए गए हैं? थॉट का, एक्सप्रेशन का, बिलीफ, फेथ और वर्शिप का। इक्वलिटी किस चीज़ का है? स्टेटस और अपॉर्चुनिटी का। फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Question number 21. How many types of justice, liberty, equality and fraternity is that given order have been mentioned in the preamble? ये तो हमने अभी पढ़ लिया है, ये ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया है। क्वेश्चन नंबर 22. इंडिया इज ए रिपब्लिक मीन्स, इसका आंसर है बी, देयर इज़ नो हेरिडिटरी रूलर्स इन इंडिया। रिपब्लिक मीन्स होता है जो भी हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड होता है। अगर हम एग्जांपल देखें तो इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट कौन है? राष्ट्रपति हैं, तो वो क्या है? इलेक्टेड हैं। इलेक्टेड मीन्स डायरेक्ट इलेक्टेड हो या इनडायरेक्ट इलेक्टेड हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन इलेक्टेड होने चाहिए। बट अगर देखा जाए कि और कोई कंट्री है, जैसे कि ब्रिटेन को ले लिया जाए, तो वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट कौन है? क्वीन है। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। रिपब्लिक मीन्स अ स्टेट इन विच द सुप्रीम पावर इज हेल्ड बाय द पीपल एंड हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड by the people through the election. In case of India, head of the state is elected by the indirect election, though elected representative. Hence India is a republic. ठीक है, इंडिया रिपब्लिक है इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो राष्ट्रपति है का चुनाव हुआ है, इनडायरेक्ट हुआ है, लेकिन यहाँ के लोगों के द्वारा ही हुआ है। Question number 23. India has people's sovereignty because preamble of the constitution begins with the word, डी है इसका आंसर, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब स्टार्ट जो प्रेम्बल का होता है ऐसे होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, इस टाइप से इससे होता है। तो इसका सोल्यूशन पढ़ते हैं एक बार आप। एक्सप्लेनेशन, द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विद द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया. These words indicate the sovereignty of the people or the citizens of India. It means that the people of India are not governed by any external power, but are directed by the constitution. इसका मतलब ये हुआ, we the people of India मतलब कि इंडिया के लोग, ये वर्ड इंडिकेट करता है यहाँ की सॉवरेनिटी, संप्रभुता को। ठीक है, इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि इंडियन पीपल गवर्नड होते थे किस चीज़ से? कॉन्स्टिट्यूशन से, ना कि किसी बाहरी ताकत से। Question number 24. Where have the word "We the people of India" has been used in the Constitution? ये है preamble में यूज हुआ था। Question number 25. All individuals are fully and equally human. This principle is known as universalism. ठीक है, सारे जो इंडिविजुअल है और ह्यूमंस है वो सारे क्या है? इक्वल है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं? यूनिवर्सलिज्म। The principle of all individuals are equally, fully and equally human is known as universalism. Question number 26. 26वां क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। Which among the following is correct expression of the term secular in India? सेकुलर का मतलब क्या हुआ? सेकुलर का मतलब हो गया
कि देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, कि इंडिया में जो रिलीजन है उसका स्टेट है उसका कोई रिलीजन नहीं है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीड द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ द सेकुलरिज्म, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट बताता है सेकुलरिज्म का। सेकुलरिज्म इन इंडिया मीन्स ऑफिशियली देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ द स्टेट, देयर इज़ अ इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द रिलीजन बाय द स्टेट, मतलब स्टेट के द्वारा सारे धर्म का बराबर से क्या होगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें सोशलिस्ट भी है, सेकुलर भी है, सॉवरेन है, पब्लिक वेलफेयर नहीं है। द वर्ड पब्लिक वेलफेयर इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन सा लिबर्टी नहीं बताया गया है, तो वो लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं दी बताया गया है। तो ठीक है, इसका ऑप्शन जो है वो है डी वाला सही है। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्बॉडीड द लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप बट डज नॉट इंक्लूड इकोनॉमिक लिबर्टी, मतलब इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, लेकिन लिबर्टी जो है थॉट मतलब विचार का, एक्सप्रेशन का, बिलीफ का, विश्वास का, फेथ का, वर्शिप पूजा का, लेकिन ये इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं दिया गया है। 29 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन द लॉ एंड लिबर्टी, इसका आंसर है बी। इफ़ देयर आर नो लॉज देयर इज़ नो लिबर्टी, अभी सारे कानून खत्म कर दिए जाए तो सबकी जो लिबर्टी है ना वो भी खत्म हो जाएगी, फिर अराजकता तो बढ़ जाएंगे, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 30, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट मैंशनड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें से क्या मेंशन नहीं है, इसका आंसर है डी। रिलीजियस जस्टिस नहीं मेंशनड है, सोशल जस्टिस मेंशन है, पॉलिटिकल जस्टिस मेंशन है, इकोनॉमिक जस्टिस मेंशन है, लेकिन रिलीजियस जस्टिस नहीं मेंशन है। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशनड social, economic and political justice, whereas the word religious justice is not present in the preamble. Question number 31. In the preamble of Indian Constitution, which justice is provided to all its citizens? तो इसका आंसर है डी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 32. Which among the following, which of the following objective is not embodied in the preamble to the Constitution? लिबर्टी ऑफ थॉट है, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ है। ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, मल्टीपल टाइम्स आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेम क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, देखो। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर नॉट प्रेजेंट इन द प्रियम्बल ऑन द इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950, ठीक है, इसको बाद में ऐड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिस्क्राइब एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये है प्रियम्बल को, देखो कितनी बार क्वेश्चन ये आया, 15, 2006, 2008, मल्टीपल टाइम से क्वेश्चन आया। तो इसका है आंसर सी है, प्रियम्बल को क्या कहा जाता है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आत्मा। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। के.एम. मुंशी, अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, डिफाइंड द प्रियम्बल एज द होरोस्कोप of our sovereign democratic republic. Subhas Kashyap has mentioned that if constitution is a body, preamble is the soul. तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन को। जब प्रियम्बल है, प्रियम्बल में को जो कहा गया है आत्मा, कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा, के.एम. मुंशी ने क्या बताया था, प्रियम्बल को होरोस्कोप बताया था, हमारे कंट्री का, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का होरोस्कोप बताया था। और सुभाष कश्यप ने क्या बोला था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक बॉडी है तो प्रियम्बल क्या है, एक उसके सोल है, सोल मीन्स आत्मा है। इफ़ द प्रियम्बल इज़ अ फाउंडेशन देन द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ स्ट्रक्चर और ए बिल्डिंग स्टैंडिंग ऑन इट। और अगर प्रियम्बल फाउंडेशन, इफ़ द प्रियम्बल इज़ फाउंडेशन
और प्रियम्बल अगर फाउंडेशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन उसके ऊपर बिल्डिंग बनी है। It is notable that Dr. Ambedkar has recognized the right to constitutional remedies, Article 32, as the heart and soul of the Constitution. और जबकि अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। क्वेश्चन नंबर 35, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द होरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? किसने कहा था? डी के एम मुंशी ने कहा था कि होरोस्कोप ऑफ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक किसने कहा था? के एम मुंशी ने। क्वेश्चन नंबर 36, हु हैज़ टर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन एज ए सेक्रेट डॉक्यूमेंट? किसने बोला था कि सेक्रेट डॉक्यूमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशन को? उसको बोला था बी आर अम्बेडकर ने। बी आर अम्बेडकर इन 1947 चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी of the Constituent Assembly of India. Ambedkar was a staunch constitutionalist. He believed that a government must be constitutional and that constitution must be treated as a basic and sacred document. ठीक है, तो sacred document किसने बताया था? बी आर अम्बेडकर ने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन को। क्वेश्चन 37, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? और इसमें बोले थे किसने? एस आर बम्बई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में बोला था। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इन केस एस आर बम्बई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1994, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एस आर बम्बई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में प्रियम्बल को इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना गया था। इन केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 1973, बेंच ऑफ 13 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आउटलाइन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस में केस में बताया गया था तो ये याद रखना कि केशवानंद भारती केस 1973 में, और इंटीग्रल पार्ट किस में बताया गया था वो बताया गया था एस आर बम्बई केस में 1994 में। ये सारे याद करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 38, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का? इसका है बेरूबारी केस में। इन बेरूबारी केस 1960 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड दैट प्रियम्बल इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया कब बना था? 1994 में एस आर मुंबई में। कब नहीं माने थे? बेरूबारी केस 1960 में। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कब आया था? 1973 केशवानंद भारती केस। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, हर बार आता रहता है। 39, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये हो गया केशवानंद भारती केस 1973 में बताया था। क्वेश्चन नंबर 40, अब यहाँ पे देखते हैं इसका, हम सीधे क्या पढ़ते हैं, सोल्यूशन पढ़ते हैं। गोलकनाथ केस वाज डिसाइडेड ऑन 27 फरवरी 1967। गोलकनाथ केस डिसाइड कब किया गया था? 27 फरवरी 1967। केशवानंद भारती 1973। द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 was passed in 1971 November 5. कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट 1976 में पास हुआ था। 40 वाला एक बार देख लो आप। हाँ, क्वेश्चन नंबर 41, इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन। अब ये कहाँ पर प्रोवाइड किया गया है इकोनॉमिक जस्टिस? इसका आंसर जो है वो है बी। बी आंसर देखो इसका, प्रियम्बल में, डीपीएसपी में। The preamble explicitly provide for economic justice as an objective of the Indian Constitution. The part of the directive principle of state policy, on the other hand, contains several articles which provide for economic justice. Article 38(1) says, the state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political shall inform all the institution of national life. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, the ideal and objective outlined in the preamble of the Indian Constitution have been further elaborated. ऑब्जेक्टिव और आइडियल्स प्रियम्बल में आउटलाइन किए गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 42 का सी है आंसर। द चैप्टर ऑन द डीपीएसपी फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर जस्टिस। जो मेन ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन का उसका क्या है कि सिक्योर करना क्या है, जस्टिस। जस्टिस प्रकार के कितने होते हैं देखो, सोशल जस्टिस भी होता है, इकोनॉमिक जस्टिस होता है, पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट होता है, एक्सप्रेशन होता है, बिलीफ होता है, फेथ होता है, वर्शिप होता है, इक्वलिटी। इक्वलिटी किसका होता है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ओके, टू ऑल इट्स सिटीजन। द एडवांसमेंट ऑफ द पीपल शुड नॉट बी a barrier to the advancement of the nation. So the promotion of fraternity is also aimed in the constitution. बंधुत्व का भी कॉन्सेप्ट दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव आउटलाइंड बाय द प्रेम्बल आर इंक्लूडेड इन द चैप्टर related to the fundamental right, DPSP and fundamental duties. Question number 43. The mind of the maker of the Constitution of India is reflected in which of the following? द माइंड जो है मेकर्स का किस चीज़ में रिफ्लेक्ट करता है, वो प्रिम्बल में रिफ्लेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 44। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये भी प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 45। हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस हैव बीन इंश्राइंड इन द प्रिम्बल? 3 टाइप ऑफ जस्टिस में इंश्राइन किए गए हैं, जैसे कि सोशल हो गया, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस हो गया। क्वेश्चन नंबर 46। द प्रिम्बल गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अब इसके क्या होंगे, इज़ नॉट इन्फोर्सबल इन एनी कोर्ट, फर्स्ट वाला सही है। इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हैव यूटिलिटी, ये सही बात है, ये इम्पॉर्टेंट है। डिस्क्राइब एम्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी बताता है। हेल्प टू गिव अ जुडिशियल मीनिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। सो ऑल द आंसर्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47। विच इज़ द लीगल नेचर ऑफ द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? लीगल नेचर क्या है, तो इसका होगा बीन। इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल, आप इसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते कोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 48। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी इन ए लिबरल डेमोक्रेसी? 48 का होगा आंसर डी, सेपरेशन ऑफ पावर। इन लिबरल अप्रोच विच इज इनहेरेंट इन डेमोक्रेसी ऑल फॉर्म्स ऑफ पावर आर रूटेड in the will of the people. This approach enhances the rule of law as one of the basic foundation of the democracy. It affirms the separation of power as a vehicle for their restraint, and it promotes individual rights and freedom as a prerequisite for their dignity. Committee Committed judiciary will never go against the government policies. Centralization of power refers to set up in which a decision-making power are concentrated in a few leaders at the top of the organizational structure that may lead to authoritarian tendencies. Elected government is expected to ensure liberty but not the bestest safeguard to ensure liberty. Therefore, all three cannot be the answer. इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जैसे हमारे यहाँ क्या है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है और लेजिस्लेशन है, तीनों को अलग अलग सेपरेट करके रखा गया है, ठीक है। इसलिए रीज़न ये है कि जो कमिटेड जुडिशरी है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के अगेंस्ट नहीं जाएगी। एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर रिफर टू द सेटअप इन विच द डिसीजन मेकिंग पावर आर कंसंट्रेटेड इन फ्यू लीडर्स एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, कि जिससे कि अथॉरिटरी ना, किसी की अथॉरिटी ना हो जाए, इसकी वजह से सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, डिसीजन ऑफ, तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो टॉप के लीडर्स हैं और उनके हाथ में सारी पावर अगर आ जाए तो वो अपनी अथॉरिटी चलाएंगे। और इलेक्टेड गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट किया जाए टू इंश्योर लिबर्टी, लेकिन ये कि वो इंश्योर करें क्या नाम है, लिबर्टी को, बट नॉट द बेस्टेस्ट सेफ गार्ड टू इंश्योर लिबर्टी, लेकिन ये बेस्ट भी नहीं है कि इंश्योर करे लिबर्टी को। इसलिए तीनों सही नहीं है, इस वजह से सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 49। वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ द इक्वलिटी इन द सोसाइटी इज़ द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 का ये है एक्सप्लेनेशन, इसको आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 50। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, डी है इसका आंसर,
ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट होगी वो लिमिट कर दी जाएगी टर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के टर्म्स से। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है? इसका आंसर सी, सोशल इक्वालिटी इज गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। Social equality has been guaranteed in our constitution under right to equality in article 14 to 18. The preamble to the constitution also aim to secure social equality. तो ये अभी प्रिम्बल का 51 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और अगर ये अच्छे से आप तैयार कर लोगे तो इसमें से अगर एक दो क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम्स में तो वो छूटेंगे नहीं, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर दिए गए हैं। और अगला जो हम स्टार्ट करेंगे गवर्नेंस सिस्टम के पे स्टार्ट करेंगे, इसमें सारे क्वेश्चंस करवाएंगे अच्छे से। And we'll meet in the next video.